تو میں نے کہا تو انہوں نے نا ایک بک لا کے دی مجھے, میری نماز, چھوٹی سی بک تھی, وہ ہندی میں تھی, بک کا نام تھا میری نماز. تو میں نے وہ بک جو ہے پڑھا, وہ ایک دن میں ہی پڑھ لی, چھوٹی سی بک تھی, تو اس میں سارا طریقہ, وضو, یہ وہ ہر چیز جو ہے. اس کے بعد انہوں نے فتح خان جالندھری صاحب کی ٹرانسلیٹ کی ہوئی قرآن شریف لائے, اور انہوں نے کہا کہ سمیر دیکھو یہ ٹائم نکال کے تم نیچے جب ہوتے تو پڑھو, میں تمہیں بتاتا ہوں, یہ بڑی اچھی بات تمہیں سمجھ آئے گی. انہوں نے کچھ ایسا ریلیجن کے بارے میں بات نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ پڑھو تم. یعنی موقع دیکھ کے پروفیسر صاحب نے چوکا مار دیا. آج پتہ لگ رہا ہے, تب اچھے لگتے تھے, اب جو ہے دشمن لگتے ہیں وہ. تو جی, اس کے بعد جو ہے آج میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ میرے سے بات نہیں کرتے, ان کے گھریلو کچھ ایسا کر دیا. سمپل سی بات ہے یار, ان کے بیٹے نے لو میرج کی, میں نے اپنے گھر پہ رکھ کے ان کی لو میرج کروائی, تو وہ ناراض ہو گئے کہ میرے گھر میں تم نے جو ہے میرے بیٹے کے ساتھ کیسے دیا تم. تو خیر وہ جو ہے میں نے پڑھنا شروع کیا, کچھ خاص سمجھ تو نہیں آ رہا تھا مجھے کچھ, مطلب کوئی چیزیں بڑی یعنی کہ میں آج کہوں تو قرآن شریف ایک بالکل بے ترتیب اور کوئی کہیں بھی کمپلیٹ کچھ نہیں ہے, کہیں کچھ شروع ہوتا ہے بنا کمپلیٹ کیے کچھ نیا شروع ہو جاتا ہے, تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. لیکن پروفیسر صاحب نے روز میرے سے تھوڑی تھوڑی بات شروع کی. انہوں نے کہا کہ سمیر یہ دنیا کے بارے میں تم نے سوچا ہے کہ کیا چل رہا ہے, کیسے آئی ہے؟ تو میں نے بولا نہیں. وہ بولے دیکھو ایک اللہ ہے, وہ سب سے بڑی طاقت ہے, اس نے یہ دنیا بنائی. دنیا میں اشرف المخلوقات میں انسان کو بنایا. اب دیکھو تم جو ہے میڈیکل کرتے ہو, تو میڈیکل کے لیے یا انجینئرنگ کے لیے ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. بنا تھیوری اور پریکٹیکل دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ ایک ڈاکٹر نہیں بن سکتے, آپ انجینئر نہیں بن سکتے. تو بولے یہ دنیا کا سسٹم بڑا ہی سمپل ہے کہ اللہ ہے, انہوں نے دنیا بنائی, یہ سب کچھ دیا, اب انسان کو انسان بنانا ہے. وہ بولے ایوری ریلیجن از دا وے آف لائف, ہر ریلیجن زندگی جینے کا راستہ بتاتا ہے, پر سچ تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے نا ضمیر. تو میں نے بولا جی ہاں, سب تو سچ نہیں ہو سکتے. تو بولے ہاں, ایوری ریلیجن از دا وے آف لائف بٹ دا ٹروتھ, مطلب سچا راستہ جو ہے وہ اسلام ہے. اور کیسے ہے؟ تو بولے بڑا سمپل ہے کہ دیکھو اللہ نے اب انسان کو بنانا ہے, انسان تو بنا دیا, جسم بنا دیا, لیکن انسان تو انہوں نے کیا کیا, تھیوری کے طور پہ قرآن شریف بھیجی اور پریکٹیکل کے طور پہ اپنا ایک میسنجر بھیجا رسول اللہ. ان کی زندگی جو ہے وہ پریکٹیکل ہے اور جو قرآن ہے وہ تھیوری ہے. تو بھائی یہ باتیں آپ سمجھو, ایک 17 سال کے لڑکے کو یہ باتیں بیٹھیں گی دماغ میں یا نہیں بیٹھیں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے, بالکل. اور ایک بات میں اس میں ایک بات میں درشکوں کے لیے ایڈ کر دوں, کیونکہ یہ میں نے کئی دفعہ بولا ہے, میری ٹی وی ڈیبیٹ پہ بھی یہ بات میں نے بولا تھا کہ دعوت کا طریقہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اب دیکھیے پروفیسر صاحب نے کیا جھول نکالا. انہوں نے کہا کہ سب ریلیجن وے آف لائف ہے, لیکن اسلام جو ہے وہ سب سے سچا ریلیجن, سب سے سچا وے آف لائف ہے. تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کیا کیا, اسلام کو سب سے اوپر رکھ دیا, باقی کو نیچے کر دیا. یہی ہوتا ہے جب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہو, لوگوں میں اسلام کا پرچار کرتے ہو, تو کہیں نہ کہیں آپ ان کو یہ بتاتے ہو, جتاتے ہو کہ بھائی اسلام ہی سچا راستہ ہے, باقی سب راستے غلط ہے. تو یہ بات ہوتی ہے. اور دیکھیں کتنی مطلب شوگر کوٹ کر کے اس کو تھوڑا یعنی لاجیکل بنانے کے لیے پروفیسر صاحب نے ہمارے سمیر صاحب کو بہلا پھسلا لیا. قرآن ان کے پاس دیا انہوں نے ٹرانسلیشن, لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, کیونکہ کسی کو نہیں سمجھ میں آتا. ملا مولویوں کو سمجھ میں نہیں آتا قرآن, تو ایک غیر مسلم ہے اس کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا. تو ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن پھر انہوں نے باتوں میں ان کو لگایا. خیر, تو وہ آپ کو انہوں نے لاجیکل آرگیومنٹ دیا کہ بھائی قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے اور پریکٹیکل کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا. رسول اللہ کی لائف ہے. اور یہ بڑا 2 ورڈز میں بڑا دنیا کا کانسیپٹ ہی انہوں نے جو سمجھا دیا نا, تو وہ لگا دل پہ.
ओके, बड़ा सिंपल सा है। तो इस्लाम, और आज मुझे पता है इतने फिरके हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि इस्लाम जैसे आपके सिखिज्म में जातियां हैं, आप अपर क्लास सिख हैं, आप जट सिख हैं, कोई मजहबी सिख होते हैं, उनको मालूमात बहुत थी, लेकिन वो सिखिज्म के बारे में भी। तो वो बोले कि देखिए कितने सारे भगवान तो नहीं हो सकते, अब हर भगवान को अलग अलग इतना तो नहीं हो सकता, आपको भी पता है। मैं बोला जी, तो भगवान रब तो एक ही होता है, और आप सिखिज्म में भी रब कहते हैं और हम इस्लाम में भी रब ही कहते हैं, और सिखिज्म तो इस्लाम के बहुत नजदीक है। आप जो है सिखिज्म में एक रब को मानते हैं, हम भी एक रब को मानते हैं, और सिखिज्म में 10 अवतार हुए हैं, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह, हम भी जो है 1,24,000 अवतार हुए हैं। तो वो बोले कि सिखिज्म जो है इसमें बहुत सारी बातें इस्लाम से ली गई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये 500 साल पुराना है, और इस्लाम तो दुनिया बनी जब से है, और हजूर जो है वो 1400 1450 साल पहले आए। तो ये बातें उन्होंने बड़ा मेरे को थोड़ा थोड़ा दिल पे मतलब वो होने लगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, इस्लाम ही वाहिद एक इतना कंप्लीट मजहब है कि इसमें कुरान में, चाहे अब वो नहीं है लेकिन उन्होंने बोला था, कुरान में साइंटिफिकली देख लो, किसी भी तरीके से देख लो, ये इतना कंप्लीट मजहब है कि दुनिया की और कोई किताब और कोई मजहब इतना कंप्लीट नहीं है। इसमें जो है खाना खाने के तरीके से लेके जिंदगी का हर, मतलब देखे बोले कि देखिए इस्लाम में 3 उंगलियों और अंगूठे को ऐसे करके 3 उंगलियों से निवाला लेके खाना है, और साइंस ने प्रूफ किया है कि आदमी के गले की नाली उतना ही एक्सेप्ट करती है जितना 3 उंगलियों के बीच में आता है। तो आप सोचो कि उस टाइम हमारे रसूलुल्लाह को कैसे पता था कि भाई 3 उंगलियों के बीच में उतना ही खाना आता है जितना जो है गला हमारा की नाली एक्सेप्ट करती है। तो ये इतना कंप्लीट मजहब है कि इसमें खाने का तरीका, कैसे बैठना, बोले घुटना ऐसे पेट को दबाना, घुटने से पेट को दबाना, तो इससे जो है 25% पेट खाली रहता है। तो 50% खाना खाना है, 25% पानी पीना है, और घुटने से अगर अपने पेट को दबा के ऐसा बैठोगे तो 25% पेट खाली रहेगा, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो वो बोले कि खाना खाने की तरीके से लेके अपनी बीवी के साथ रिलेशन, हम बिस्तरी तरीका, कैसे बिहेव करना है, कैसे रिश्ता, हर चीज का जिक्र है। ये कहीं नहीं मिल सकता तुम्हें। तो तुम सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इतना कंप्लीट मजहब, और उसको जो है तुम उससे कैसे दूर रह सकते हो। और दूसरी बात के जन्नत और दोजख का फिर उन्होंने थोड़े दिनों बाद पाठ, पहले तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, आप खुद समझते हैं कि ये बातें जो हैं उन्होंने पूरी काफी चीजें बताई थी कि ये कंप्लीट है, ये कुछ चीजें मैं भूल भी गया हूं। तो मेन चीजें जो है मैं वो जिक्र कर रहा हूं। तो उन्होंने कुरान से हटके मुझे पता चला कि ये बातें उन्होंने खुद ही बनाई, ये मतलब बातें है नहीं है, ये 3 उंगलियों वाला ये वो मुझे मिला तो नहीं कहीं, पता नहीं आपको शायद पता हो कि ये तबलीगियों में ज्यादा, ये जो 3 उंगली से खाना है, ये सब तबलीगियों में ज्यादा ये सब चलता है। मतलब प्रोफेसर साहब बोलना ये चाह रहे थे कि भाई जो 5 उंगली से खाता है उनका खाना हलक से उतरता ही नहीं है क्योंकि हलक का साइज जो है वो 3 उंगली के बराबर है यार, इतना मोटा साइज है। तो वो 5 उंगली वालों का खाना तो फिर हजम ही नहीं होता होगा। तो हम तो जमाने से 5 उंगली से खा रहे यार, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ भाई। मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है आज कि मैं तो चम्मच से खाता था, मेरा तो लेना देना ही नहीं था 3 उंगलियों से। चम्मच वाला कॉन्सेप्ट मैंने पूछा क्यों नहीं उनसे कि चम्मच के साइज से क्या बोलोगे आप। मैं मुस्लिम होने के बाद जब घर गया तो डाइनिंग टेबल पे सब घर वाले बैठे हुए थे, मैंने हाथ से खाना शुरू किया, मेरे ताया बोले उठ प्लेट ले चलो वहां दरवाजे के बाहर नीचे बैठो जाके। अच्छा, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने आपको ये बताया कि बीवी के साथ कैसे रहना है, कैसे संबंध बनाना है, ये सब बताया। उन्होंने ये बताया था कि बीवी के साथ जब आप हमबिस्तरी करने के लिए जाओ और अगर आप दुआ ना पढ़ो तो उसमें इस तरीके की बात आती है ना कि शैतान दखल करता है अंदर। शैतान तो ये बात नहीं बताई थी उन्होंने।
ये बात पूरी, मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा था, थोड़ा वल्गर हो जाता, लेकिन उन्होंने बाकी सब बातों के साथ ये बताया कि देखो कोई मजहब कितना इतना डीप कैसे जा सकता है कि आप अपनी बीवी के पास जा रहे हैं और उनके साथ आपने किस तरीके से रिलेशन बनाना है, उसकी क्या हदें हैं, मतलब चादर रखनी है, लाइट कितनी होनी चाहिए और कहाँ तक आपको इजाजत है, आप क्या कर सकते हो, कितना आप जिस्म को अपना नंगा कर सकते हो, ये सारी बातें बताई कि इतना डीप क्या कोई मजहब तुम्हें बता सकता है, या तुम बताओ कि तुमने किसी मजहब में पढ़ा है। और इसकी वो बोले कि हर चीज के लिए दुआ होती है, आप टॉयलेट जाओगे तो बाहर खड़े, मुझे दुआएं याद तो नहीं हुई पर मैं हिंदी में बोल लेता था, मतलब उन्होंने कहा चलो तुम्हें याद नहीं हो रही, तुम हिंदी में ये इसको हिंदी में बोल लिया करो, ठीक है। तो तभी मेरा शादी वादी की तरफ तो कुछ था ही नहीं, पर वो अच्छा लग रहा था, मतलब कि मतलब ऐसे करना। बाप रे बाप, कितना डीप जाना है, यहाँ तक सब बताया। और मतलब इतना डीप चला गया कि भाई हम बिस्तरी करने से पहले भी अल्लाह को याद करो ताकि हम बिस्तरी का पूरा मजा ही खराब हो जाओ। जी हम बिस्तरी का पूरा मजा ही खराब हो जाए यार। जब आदमी हम बिस्तरी करने जाता है तो वो एक फीलिंग अलग होती है, वो पार्टनर के साथ उसका पूरा अटेंशन होता है, वहां पे अल्लाह को क्यों याद करे यार, मोमिनो थोड़ा समझो यार, क्यों? यार मैं तो साहिल भाई अब सोचता हूँ कि अगर सामने से बीवी भी 2 हदीस सुनाए तो मैं तो उसके पैरों को हाथ लगा के देवी बोल के मतलब सो जाऊंगा, मतलब 2 हदीस अगर वो भी सुनाती है। अजीब क्या है यार, सही में जी। फिर आपको ये सब बातें उन्होंने बताई, हाँ फिर क्या हुआ? ये सब बातें बताई और दिल पे लगती गई। उसके बाद एक बुक ला के दी उन्होंने, जुम्मा के खुतबे, उसमें जो है किस्से थे, जैसे मैं एक किस्सा जिक्र कर देता हूँ, जन्नत और दोजख में जाने का जिक्र था, और उसमें जैसे कि भाई नीयत पे उन्होंने बोला कि इस्लाम टोटली नीयत पे डिपेंड है, आपकी नीयत क्या है वो देखता है अल्लाह, आपके प्रैक्टिकल हैंड क्या कर रहे हैं वो नहीं। इसमें उन्होंने बोला कि देखो दो आदमी रास्ते में नलका खुद बनवाते हैं, नलका लगवाते हैं। एक आदमी की सोच ये है कि मैंने नलका लगवाया है, मेरी बहुत बल्ले बल्ले होगी, मेरी दुनिया में मतलब लोग बड़ी वो करेंगे। तो बोले देखो दूसरा आदमी है वो बोलता है कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए लगाया है, अल्लाह के बंदे पानी पिएंगे। तो बोले देखो 2 लोग हैं, एक आदमी जो ये बोल रहा है, उस दोनों के नलके का पानी सेम है, दोनों के नलके के पानी से लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन एक आदमी जो दुनिया की वाहवाही के लिए कर रहा है तो उसकी नीयत देखो, किया उसने, सब खर्चा किया बराबर, लेकिन उसकी नीयत की वजह से उसको जो मिलेगी बस वाहवाही मिलेगी, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जो है जो दूसरा है अल्लाह की रजा के लिए जो कर रहा है तो उसको जो है जन्नत मिलेगी। तो देखो कितना इजी है इस्लाम में कि हमें जो है आखिर की जो हमेशा की जिंदगी है उसमें जाने के लिए नीयत ठीक होनी चाहिए। आपके हैंड प्रैक्टिस क्या हो रही है वो मायने नहीं रखता, आपने जो काम किया उसमें आपकी नीयत क्या थी। और आप जो है बोले कि अगर सिर्फ इतना आसान है इस्लाम के किसी अच्छा काम करने की नीयत भी कर लेते हो तो सवाब लिखा जाता है, आपके इधर 2 फरिश्ते हैं राइट लेफ्ट पे, वो लिख देते हैं। और गुनाह तब तक नहीं लिखा जाता जब तक आप कर नहीं